Last time also they did not participate. Ultimately, Parliament is for the debate. And last time also they raised some issue and they did not participate in the discussion. And this time also, the day one we said we are ready to discuss the Manipur and any other issues. And Manipur, in both Lok Sabha and Rajya Sabha, we gave a written consent from the government, from the respective ministry for the discussion, and it was even listed in the Rajya Sabha. But unfortunately, even when listed, they did not come for the discussion. Many bills like multi-state cooperative is a historical legislation. It seeks the strengthening the governance, enhancing the transparency, increasing the accountability. These are all the provisions. And many MPs, they are in the are in the cooperative movement also. Biological Diversity Amendment Bill, the Forest Conservation Amendment Bill. First time, after a long time, there was no definition of the forest. It is defined in this Act. Jana Vishwas Bill, decriminalizing many of the provisions in so many acts. These are the for the research, first time Anusandhan National Research Foundation Bill with 50,000 crores allocation, that was brought. These are all the things which really matters. We wanted a very healthy discussion, but unfortunately they did not participate. And as you all know, no confidence motion was discussed. It was discussed for almost nearly 20 hours. 20 घंटा के लिए हमने चर्चा की. In recent past, this is the highest time allocated for the no confidence motion. More than 60 members participated in the discussion, and as I already said, today 3 bills have been sent to the standing committee. The productivity of the Lok Sabha is around 45% and Rajya Sabha is 63%. And at least I hope that good sense will prevail, and during the next session, which will be almost the last session before to the budget session, which will be normally for the vote of account, since after that we will be going for the general elections. तो मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि vote of account, since after that we will be going for the general elections. तो मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम नेक्स्ट सेशन में चर्चा में भाग ले और चर्चा समृद्ध करे. पहले दिन में प्रधानमंत्री जी भी ने जब आप लोगों से संबोधित किया, उस टाइम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था कि आप चर्चा में भाग लो. बट ओनली थिंग इज सम ऑफ द लैंडमार्क bills have been passed, which will be very much people friendly, citizen friendly and poor friendly. So with these words, my remarks, I will conclude my initial remarks. और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं.
One by one. One she is asking. Total bill together it is 23. प्रहलाद जी, राहुल गांधी ने कहा है कि पहली बार है कि संसद की कार्रवाई से भारत माता शब्द है जो वो निकाल दिया गया है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये इनको राहुल गांधी को समझ नहीं है, भारत माता का शब्द नहीं निकाला है, उन्होंने ठीक तरह से देखा नहीं है। असंसदीय वो निकाला, जो कुछ भी असंसदीय है वो निकाला गया है। और ऐसे जो असंसदीय शब्द निकालते हैं वो सबका एक्सपंज हो जाता है। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस। भारत माता का नहीं निकाला है। और मुझे हर्ष ये है कि कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया, लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, असंसदीय शब्द मात्र ही निकला गया है। और see, there is no question. If see, I had last time also I had told you, if I remember well, that when we are ready to discuss, when there was supplementary, in supplementary business it was listed out, you will come to well and you will show the aspersions on the chair, and in spite of the warning you will not cooperate, and you will not allow the, ultimately, see, many times these people will tell, they keep on telling only government business is happening. Government business is ultimately people's business. Whatever the bills we pass, that will be for the good of the people only. But they don't allow us to function. Then what to do? This is all bogus claim. They never wanted discussion on any issue because they know the performance of Modi government is historically well. It's a record in the history of independent India. इसलिए वो चर्चा ही नहीं चाहते थे। तो अगर वो चर्चा में भाग लेते तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी दे सकते थे। Sir, opposition basically is saying that it does not take any action on Sanjay Bhatia. Currently, Sanjay who was making statement on CM of Telangana, but you took action. नाम नहीं लिया उन्होंने। And Sanjay Singh and Abhinandan Chauhan. देखो, अगर उसमें एक्शन क्या लिया गया है, एक्शन एक्सपंज करने का एक है। एक्सपंज करने के लिए अगर वो चाहते तो लिख के देने दो, स्पीकर विल डिसाइड ऑन दैट। इट इज नॉट माय डोमेन, इट इज नॉट माय जुरिस्डिक्शन। हमने जो अनपार्लियामेंट्री था, हमारे पार्टी से कुछ एमपीस लिख के दिया है अनपार्लियामेंट्री जो है, और वो एग्जामिन करके, अनपार्लियामेंट्री का एक लिस्ट है, ये तो हमने नहीं बनाया है, बहुत पुराने काल से है। ये जो लिस्ट है, वो लिस्ट में जो अनपार्लियामेंट्री है वो निकाला जाता है। इट इज नॉट दैट वी हैव नॉट सिलेक्टिवली एक्सपेंड करने के लिए हमको अधिकार ही नहीं है जी। सर, उनका ये भी कहना है विपक्ष का कि आप सदन जो है खाली नियमों से नहीं परंपराओं से भी चलता है। अच्छा, परंपरा में मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ एक परंपरा मैं बताता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे एक परंपरा है कि रूल 98 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। प्राइम मिनिस्टर की रिप्लाई के बाद राइट टू रिप्लाई का अधिकार भी अपोजिशन को है। तो अधिकतर ये परंपरा है लोकसभा में कि प्राइम मिनिस्टर की रिप्लाई, उसके बाद राइट टू रिप्लाई अपोजिशन की तरफ से कर कि आपका जवाब ठीक नहीं था, उसके बाद वॉकआउट करते हैं। उस परंपरा को भी नहीं निभाया और वो अधिकार भी खो दिया। कौन सी परंपरा की बात करते हैं वो?
267 और 176। विपक्ष कह रहा है 267 में चर्चा करें, तो हर रोज आके इसी पर बात कर जाती है कि इस नियम के तहत चर्चा करें। तो क्या इसका कोई वे आउट? No, it was a most, according to me, it was most childish argument because, see, when the day one itself, when he said that 176 short duration चर्चा पे हम तैयार है, ये रेसिडुअल पावर में आता है। No, moreover, ये आप माइक लो ना। the first notice that was received was for 176 on 2nd July. Yes. So 2nd July, the first notice From received on opposition side. Manipur issue, Opposition side. including the opposition, they had given for short duration in 176. So that was taken note of by the chairman, and then it was admitted. After that, opposition had a rethinking. Then they went for 267. So when 176 has been already accepted under the rules of Rajya Sabha, since on a particular topic a motion has been already admitted, on the same topic another notice cannot be accepted. आदमी बोलने के लिए खड़ा हो गया था ना। More so, from May, whatever the unfortunate incidents are happening in Manipur, they are happening from the May. And session started in July. 267 कब होता है? आज सुबह कुछ इंसिडेंट हुआ है. Today morning or after the closure of the business in the previous day, if some major things happens, and then already there is a listed business, and that listed business should be suspended, and the incident which has occurred after the closure of the previous day working hours, that has to be discussed. 267 is meant for that. And when it is in, there is a provision in the other provision where there is this incident, unfortunate incidents are happening from the main, and government is ready to accept. What is your problem? Why residual power should be used when it is not necessary? This we try to convince them. The problem of the Congress and other opposition party was that they never thought, I am telling you, the members of the Congress party also, not leaders, member of the Congress MPs are also, personally they have revealed, I mean they have told us that हम ये सोचता भी नहीं था कि आप तुरंत चर्चा पे एग्री करेंगे, तो जब एग्री कर दिया वो समझ गए तो ये तो हम अभी एकदम सुचारू रूप से चलना पड़ेगा, इसलिए ये नया बहाना ढूंढा. दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट. ये नहीं चलता है. जब देश में कई देश के किसी भाग में ऐसे कुछ होता है तो जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसमें हम सब सेंसिटिव रहना चाहिए. आज भी राहुल गांधी क्या क्या बोला है, तो आई थिंक ही हैज लॉस्ट दी, मिस्टर राहुल गांधी हैज लॉस्ट दी mental balance. It appears like that. Whatever the statement he has made today, by that it appears that he has lost, because he has not heard the reply. He did not come to house. Almost more than an hour total. माननीय गृह मंत्री जी ने 2 घंटे तक बोला, उसमें 1 घंटा से ज्यादा मणिपुर पर बोला है, और मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास न जानते हुए ऐसे आज जो स्टेटमेंट दिया है, ये देश के हित में है क्या? 15-20 मिनट प्रधानमंत्री जी भी बोला, और कल प्रधानमंत्री जी ने इसमें बोला है. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, द सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी इज बिहेविंग सो इरिस्पॉन्सिबली. थैंक यू जी, धन्यवाद. Will there be a deputy speaker in 17th Lok Sabha? है क्या ये Lok कुछ Sabha is about to conclude. क्वेश्चन? This session will be the last session. Will there be a deputy speaker in this? तो जब डिसाइड होगा आपको बताएंगे. इन्फॉर्म यू. ये इनका परमानेंट क्वेश्चन है. इनका कोई करना हाँ, आप जब एमपी बनेंगे ना, इनके नाम पे विचार कर सकते हैं.
हाँ ये ठीक है। किसी को स्पॉन्सर करने के लिए ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದಿದೆ. 20 ಜುಲೈದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 17 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी यहाँ बता रहे थे कि मानसून सत्र में किस तरीके का रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो ज़रूर पारित हुए, लेकिन कई महत्वपूर्ण और बिल थे जिन पर चर्चा भी करनी गई थी। और खासतौर से मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया कि 176 नियम के तहत आखिर क्यों उस पर चर्चा की गई और क्यों 267 के तहत नहीं की गई, क्योंकि जो मामला था वो मई महीने का था और 267 का नियम ये कहता है कि जो तत्काल बड़ी घटना हुई है उसके अनुसार तब उस नियम के तहत चर्चा की जा सकती है। और अब से पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उस पर पहली बार करीब 20 घंटे सदन में चर्चा की गई, लेकिन विपक्ष वहाँ भी मौजूद नहीं रहा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहाँ संबोधित कर रहे थे उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। और इस दौरान हमने देखा कि अगर राज्यसभा की बात की जाए तो करीब 25 बिल, जबकि लोकसभा की बात करें 22 बिल करीब पेश हुए। तो उन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई रही और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण जो परिस्थितियाँ थी वो दर्ज की गई थी। और इससे पहले अब अगर बात की जाए मानसून सत्र के आखिरी दिन की, तो आपको बता दें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को एक करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सांसदों की फर्जी हस्ताक्षर मामले में आप सांसद पर यह कार्रवाई की गई है। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों की मंजूरी के बिना उनकी सदस्यता वाली समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच करेगी। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। Taking a holistic view on the gravity of his misdemeanor, violation of rules, defined attitude and inappropriate conduct, I find it expedient invoking Rule 266, read with Rule 256, and suspend Sri Raghav Chadha, member from the service of the Council, till the Council has the benefit of the report of by the Committee of Privileges. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ाने की घोषणा की। सभापति ने कहा कि मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया है। 24 जुलाई 2023 का निलंबन आदेश वर्तमान सत्र के आगे भी जारी रह सकता है, जब तक राज्यसभा को विशेषाधिकार समिति रिपोर्ट नहीं मिल जाती। संजय सिंह पर सदन की वेल में 56 बार आने का आरोप लगा है। Taking a conspicuous view of his continued misconduct, violation of directions and blatant disregard of his the rules of the House, I find it expedient to refer the matter as indicated earlier to the Committee of Privileges. Further, I invoke Rule 266, read with Rule 256, that suspension order dated 24 July 2023 in respect of Shri Sanjay Singh may continue beyond the current session till the Council has the benefit of recommendation by the Committee of Privileges. वहीं लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित होने की घोषणा करते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा के इस 12वें सत्र में 17 बैठक हुई, जो कि 44 घंटे 15 मिनट चली। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव उस पर चर्चा में 60 सदस्यों ने भाग लिया। हम 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये सत्र 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 17 बैठकें की, जो लगभग 44 घंटे और 15 मिनट तक चली। सत्र के दौरान श्री गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर 8/8/2023, 9/8/2023 और 10/8/2023 को चर्चा हुई। इस पर 19 घंटे 59 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में कुल 60 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संसद के इस मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 20 विधेयक पेश किए गए और 22 विधेयक पारित हुए। इन विधेयकों में दिल्ली सेवा बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। इस सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा 22 विधेयक पारित हुए।
पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्ति डाटा संरक्षण विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023। संसद के इस मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्य उत्पादकता 45